हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी कंटेनर मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ मिस्टर साईनाथ पवार साहब और उनका साथ दे रहे कंपनी के सीएफओ मिस्टर अमोल सर। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ऑलराइट। तो साईनाथ सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। प्लीज समझाएं आपकी कंपनी का कारोबार क्या है और किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। Thank you so much. Good evening, all of you. My name is Rainath Pawar. I'm the CEO of this company, Ashwini Container Motors Limited. So I will explain how we operate and why Ashwini is built sustainable long-term growth. सो अश्विनी कंटेनर मूवर्स हम लोग एक टिपिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं होके हम लोग एक पोर्ट फोकस 2PL कंटेनर लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट है। हम लोग आज के डेट में इंडिया के जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है जैसे कि नावा शिवा, जेएनपीटी और हजीरा, ये दोनों पोर्ट पे हम लोग 13 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। We manage a complete export transport cycle. First, we pick up the empty containers from the port and check its condition for the export worthiness and deliver these containers to the factory for loading of the cargo. Once the containers are loaded, we transport the sealed container back to the port and complete the gating formalities and hand over the container for the vessel loading. During this journey, our team monitors the movement and end-to-end real-time updates, also ensure the timely deliveries and safety of operations. Also, we ensure that zero disruption in export supply chain. In related to the offering, we are offering full container load services, including the reefer and non-reefer. Also, we are moving around 2,000 containers per month. Apart from this, we are also doing the LCL cargo movements. Also, we are doing ODC movements. So we have started in 2012. At that time, we used to own the 20 to 25 fleets. And in 2021, we achieved the milestone of 100 vehicles. And in 2023, the company revenue crossed 75 crores. And we owned that time around 200 fleets. So back to the 2024, we have converted our company to the public limited, and we used to own around 266 fleets. Now at this time, at present time, we are owning 340 plus fleets in our organization. You can talk about technology. We are having the ERP system in place in our organization, like ClearSoft and Alexia. The Alexa system offering us all the GPS devices in our fleets. Talking about the clients, we are having 200 plus long-term B2B clients, and we are catering to the industries like pharmaceuticals, chemical, automobile, polymer, and perishables. Then talking about the certification part, compliance part, we are having ISO 9001, 14001, 45001 falls under the QMS. Then for the pharmaceuticals, we are having GDP. For the perishables, we are having FSI, and Securipat also we are having. So the fleet-wise growth, you can see from the 20 to 25 fleets, now we are sitting at 340 plus fleets in our organization. Yeah. Starting from the financial year 2023, we did 21,000 containers, and currently in present H1 of financial year 2026, we did 13,000 FCL containers and 9,000 from our CFS revenue model. सर, आपने बिजनेस ओवरव्यू बहुत अच्छे से बताया। कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो जैसे आपने हम्म। बताया कि आप अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग क्लाइंट के कंटेनर्स को हैंडल करते हैं, तो उसमें आपकी कोई स्पेशलिटी है? जैसे हो गया कि कोई हजार्डस मटेरियल है जिस उसको हैंडल करने में आपकी स्पेशलिटी है, या इन जनरल आप सारे ही मटेरियल्स को हैंडल करते हैं? देखो, हम लोग का जो स्पेशलाइजेशन है एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में है। एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग केमिकल कंपनियों के साथ भी काम करते हैं, जिसमें राइट। जो हमारे ड्राइवर्स है उनको हम लोग 1000 DS के लिए ट्रेनिंग्स देते हैं। और जो उनका हैज लाइसेंस उनके पास रहता है, तो वो हिसाब से हम लोग केमिकल का क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक हम लोग कार्गो मूव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम लोग काम करते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर सेंसिटिव कार्गो रहता है, तो वो भी राइट। कार्गो हम लोग मूव करते हैं। And in non-reefer, so generally all the industries like you can say automobile, then polymers, we are doing their business.
ओके। और सर जैसे आपने बताया कि 340 प्लस का आपका फ्लीट साइज है, तो ये हम्म। सारे ही कंपनी ओन्ड फ्लीट है या आप एसेट लाइट में भी एसेट लाइट मॉडल भी आप मेंटेन करते हैं? ओके। नहीं, ये सब फ्लीट्स आर ओन बाय ओनली कंपनी है। 312 जो फ्लीट्स है, जैसे आरएसपी पे दिख रहा है, सब कंपनी ओन फ्लीट्स है। हम लोग एसेट मॉडल में नहीं जाते हैं कभी भी। ओके। सर एक स्टेप पीछे जाते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी, और उसके पहले प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या था सर? सो कंपनी के जो फाउंडर्स है, मिस्टर भास्कर पवार जी और मिस्टर गोविंद साबले जी, इन्होंने 2004 में कंपनी को फॉर्म किया था। वो टाइम पे हम लोग का नॉर्मल पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कंपनी था। दोनों का बैकग्राउंड देखा जाए तो भास्कर जी और गोविंद जी का लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ही बैकग्राउंड है, उनका पास बैकग्राउंड भी। तो 2004 से हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तभी हम लोग के पास सिंगल व्हीकल था। तो से एक व्हीकल से पाँच, पाँच से 10 करते करते हम लोग फिर 2012 तक पहुंचे। 2012 में हम लोग के पास 25 से 30 40 गाड़ी था वो टाइम पे। और 2012 में हम लोगों ने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए 2023 में हम लोग ने जो 75 CR प्लस का रेवेन्यू क्रॉस किया। और राइट। 200 फ्लिप्स हम लोगों ने अचीव किया 2023 में। और 24 में रिसेंटली हम लोगों ने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया। और जब भी H1 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का फ्लीट काउंट था 312। और एट प्रेजेंट हम लोग का फ्लीट काउंट है 340 प्लस। ओके। अमोल सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं सर। कोई सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न्स है? सिस्टर कंसर्न सबसे बड़ी कंपनी बीजीएस लॉजिस्टिक है। जी। साइनाथ सर, इन दोनों कंपनी के बिजनेस में कुछ डिफरेंस है या इंटर कंपनी कुछ ट्रांजेक्शंस तो होते हैं इसका सर? आंसर मैं आपको देता हूँ। जी। सिस्टर कंसर्न कंपनी हम लोग का एक बीजेस लॉजिस्टिक्स करके है। तो ये कंपनी कस्टम क्लियरेंस का काम करता है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। प्योरली कस्टम क्लियरेंस में वो काम करता है कंपनी। तो ओके। उसमें वो कंपनी में जो हम लोग के एसीजेड कंटेनर रहते हैं, उसमें कस्टम क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। तो हम लोग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं हम लोग को, उसमें वो क्लियरेंस का पार्ट मैंडेटरी रहता है, क्योंकि एसीजेड में नावा शो में क्लियरेंस नहीं होता है। और डायरेक्टली एसीजेड यूनिट से ही गाड़ियां छोड़ के उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइल करना पड़ता है। तो हम लोग वो बीजेएस लॉजिस्टिक्स के थ्रू करते हैं। वो गॉट इट। कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी वर्क नहीं होता है। गॉट इट। और साइनाथ सर, ये भी बताएं कि आप ये आईपीओ के प्रोसीडिंग्स, आईपीओ के फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? सर इसमें हम लोग 42 करोड़ जो यूज करेंगे, हम लोग लोन रिपेमेंट के लिए यूज करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग के जो भी हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन है, जो 11% में है ऑलमोस्ट, तो वो हम लोग उनको कम करके हम लोग नए लोन्स हम लोग को 8 to 8.5 के बीच में हम लोग को लोन मिल रहे हैं। और 9 साढ़े 9 करोड़ के आसपास हम लोग नया फ्लीट्स लेंगे, जो 20 से 25 नए फ्लीट्स कंपनी में ऐड हो गए। और जो भी रिमेनिंग फंड्स है वो हम लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेंगे। सर जैसे आपने बताया कि आप आईपीओ प्रोसीड का मेन यूज लोन रिपेमेंट करेंगे, तो मैं अगर आपका लोन देख रहा था तो लास्ट फ्यू इयर्स में 47 करोड़ से 58 करोड़ हुआ, देन 62 और 74 करोड़ आज के टाइम पे है। तो गोइंग फॉरवर्ड लोन रिपेमेंट के बाद में आपका डेट का क्या स्टेटस रहेगा और कंपनी की डेट इक्विटी कितनी रहेगी, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी क्या आपका प्लान है, कितना रहना चाहिए? सर ये जो मेन जो लोन रिपेमेंट का सबसे बड़ा रीजन है, हम लोग को हाई हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन रिपेमेंट करने के हैं। और गाड़ियां तो हम लेते ही जाएंगे। और प्लस जो आगे जाके जो लोन का जो लाइबिलिटी है, जिस कंपनी का प्रॉफिट है, वो भी हम लोग का व्हीकल परचेस में उसमें भी कुछ पोर्शन उसमें भी यूज होगा। और जैसे जैसे गाड़ियां फ्री भी होती है, जैसे अभी आज कोई गाड़ियां ली और 5 साल पुरानी गाड़ियां जो होती है वो गाड़ियां फ्री होते जाती है। हमारा जो लोन का ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। 5 साल का हम लोग लोन लेते हैं मोस्टली। और हर एक गाड़ी का जो लाइफ साइकिल रहता है आरटीओ के हिसाब से, वो 15 साल का रहता है। तो हम लोग 8 साल तक गाड़ियां एक मॉडल में यूज करते हैं। और 8 साल के बाद गाड़ियां हम लोग क्लोज रेडियस में ही यूज करते हैं वो गाड़ियों को। तो सर जैसे अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी बात चल रही है, आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि लाइक इलेक्ट्रिक ट्रक्स कुछ मूव करने के लिए कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या अभी नॉर्मल ट्रक्स ही यूज होंगे? इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन? सर इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग जाने का हम लोग का पूरा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि हम लोग का एक दो जगह पे बात भी चालू है कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
फाइनल नेगोशिएशन स्टेज में है वो कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को अवार्ड मिलते हैं तो हम लोग उसमें 5 से 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हम लोग को डालने का उसमें पॉजिटिवनेस है हम लोग का उसमें, तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक के लिए सोचेंगे। और सर मैं आपका एबिटा मार्जिन देख रहा था, वो भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में, लाइक 15% से हम्म, 17, 26 एंड नाउ हम्म। 34.62। तो ये सर मतलब इतना ज्यादा एबिटा गोइंग फॉरवर्ड भी कंटिन्यू रहेगा, ये वन ऑफ केस था? सर गोइंग फॉरवर्ड ये कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए 3 से 4 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम लोग का जो मेन कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, डीजल कॉस्टिंग, उसके लिए हम लोगों ने बल्क परचेसिंग चालू किया है। उसकी वजह से हम लोग को डायरेक्टली 2 या 3% का डिस्काउंट हम लोग को डीलर से मिलता है। तो हार्डली हम लोग का जो डेली बेसिस पे डीजल कंज्यूमेशन है वो 25 से 30 हजार लीटर का है। उसके बाद जो हम लोगों ने जो पुरानी फ्लीट्स थी जैसे BS3 BS4, जिनके एवरेज हम लोग को कम आ रहे थे, वो भी व्हीकल्स हम लोगों ने सेल आउट करके हम लोगों ने नया BS6 व्हीकल्स हम लोगों ने खरीदा है। और हम लोगों ने बहुत सारे जो जिधर हम लोग के ज्यादा कम बेनिफिट थे, जो जो हाई कॉस्टिंग रूट्स थे हम लोग के, वो भी हम लोगों ने एलिमिनेट करके हम लोगों ने जिधर ज्यादा प्रॉफिट है वो रूट्स हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के डेटाबेस के हिसाब से वो रूट पे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं आज के दिन में। ऑल्सो हम लोगों ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंटेनर लिंकिंग स्ट्रेटेजी भी कंपनी में इम्प्लाई। और सर जैसे आपका जो रिवेन्यू सेगमेंट है उसमें दो सेग्रीगेशन दिए हैं, एक ड्राई कंटेनर और एक रेफ्रिजरेटर कंटेनर। तो सर इन दोनों में क्या मार्जिन डिफरेंस है, और गोइंग फॉरवर्ड आप क्या रेशियो देखते हैं ड्राई कंटेनर और रेफ्रिजरेटर कंटेनर में? सर उसमें ड्राई कंटेनर में और रीफर कंटेनर में आप देखोगे तो रीफर कंटेनर में हम लोग को 5% से ज्यादा मार्जिन रहता है एज कम्पेयर टू ड्राई। और आज के डेट में हम लोग रीफर में कम से कम हमारा 100 गाड़ियां रीफर रेफ्रिजरेटर मूवमेंट्स में चलता है, जिसमें हम लोग को वॉल्यूम भी उसमें ज्यादा मिलता है, टर्न अराउंड टाइम भी अच्छा होता है उसमें, और मार्जिन भी एज कम्पेयर टू नॉन रीफर उसमें अच्छा रहता है रीफर में। और सर और जैसे आप। सेग्रीगेशन भी आप देखा जाए, हम्म। सेग्रीगेशन भी देखोगे आप, तो कंपनी में 100 गाड़ी आज के डेट में एट प्रेजेंट रीफर है, और बाकी रेस्ट ऑफ 40 फीटर नॉन रीफर व्हीकल्स है, उसमें भी 20 फीटर एंड 40 फीटर है टाइप में, व्हीकल टाइप देखोगे तो। और सर जैसे आपके टॉप 10 कस्टमर्स हैं, वो मेजोरिटी रिवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका परसेंटेज गोइंग फॉरवर्ड पिछले 4 साल में धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही रहेगा या रेशियो और भी डिक्रीज होगा टॉप 10 कस्टमर्स का? सर ये रेशियो डिक्रीज मतलब इससे थोड़ा सा डिक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ टॉप 10 कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम लोग कस्टमर बेस बढ़ाएंगे हम लोग का, क्यों, हम्म। और ऑलरेडी बढ़ा हुआ है हम लोग का। हम्म। उसका जो डिक्रीज होने का रीजन वो पॉजिटिव रीजन है, कि हम्म। हम लोग जो टॉप 10 कस्टमर है उनके ऊपर के रिलायबिलिटी हम लोग को कम किया है बहुत सारा। हम्म। क्योंकि क्या होता है, कभी किसी का इश्यूज हो गया, कोई कस्टमर्स का वॉल्यूम डाउन हो गया, तो कंपनी पे इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने हमारा कस्टमर बेस बढ़ाया है, इसके लिए वो परसेंटेज कम होते जा रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का गाड़ियों का फ्लीट्स बढ़ाएंगे तो परसेंटेज भी हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग बाकी कस्टमर के पास भी साथ भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट। सर जैसे आपका बिजनेस महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में ज्यादा है, तो ये माना जाए कि इन दो स्टेट में, इन दो ज्योग्राफी में आपका फोकस ज्यादा है, या आप फोकस पूरे पैन इंडिया में करना चाहते हैं? सर मेरा फोकस पूरा पैन इंडिया ही है, बट आज के डेट में मैं 70 to 80% महाराष्ट्र का बिजनेस करता हूँ, और बाकी गुजरात का भी करता हूँ। बट अभी हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जहाँ से नावाशा से हैदराबाद जाते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश जाते हैं बद्दी, तो लॉन्ग हॉलेज भी मूवमेंट्स है वो हम लोगों ने अभी बहुत सारे चालू भी किए हैं। हम लोग का फोकस हमेशा पैन इंडिया ही है। जैसे हम लोग JNPT में भी काम करते हैं, हजीरा पोर्ट में भी काम करते हैं, और आगे जाके हम लोग को चांस मिला हम लोग चेन्नई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, उधर भी हम लोग जाएंगे काम करने के लिए। ओके। सर आप लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए और आपकी कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क देखते हैं इन जनरल, और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? क्या कोई गवर्नमेंट लॉज या पॉलिसीज को लेके, या लेबर मतलब आपके स्किल ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको लेके, या कोई और तरीके के रिस्क दिखते हैं? सर इसमें लेबर का इश्यूज और कभी कभी ड्राइवर्स का इशू होता है इसमें। जो ड्राइवर के इशू में कैसा रहता है, कभी कभी कोई गवर्नमेंट के वगैरह पॉलिसीज वगैरह चेंज होते हैं, उसके बाद क्या उनका टेम्परली कभी भी हॉल्ट कर सकते हैं शॉर्टेज के ऑपरेशन की वजह से,
वो एक बार ड्राइवर का स्ट्राइक्स का कभी कभी होता है। उसके बाद अपना रेगुलर शिफ्ट के हिसाब से, मतलब पोर्ट रूल या गवर्नमेंट पॉलिसी में सडन चेंजेस आते हैं, एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो अपने। उसके बाद जोग्राफिक का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लगभग 85% ऑफ रेवेन्यू हम लोग का महाराष्ट्र से आता है, जिससे रीजनल डेवलपमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट कभी कभी पड़ सकता है। ऑल्सो टेक्नोलॉजी रिलायंस, मतलब सिस्टम फेल्यूर, साइबर ट्रैकिंग, साइबर अटैक्स वगैरह कभी कभी इशू आता है। वही, और इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी, रोड नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, जैसे वेदर इश्यूज हो गया, मेंटेनेंस या ट्रैफिक बॉटलनेक टाइमलाइंस हो गया, उसके वजह से कभी कभी इश्यूज आते हैं। ओके। सर, इस सेक्टर में कंपटीशन काफी तगड़ी होती है। बहुत सारे बड़े लिस्टेड प्लेयर्स भी है, कुछ नए टाइप के मॉडल्स एसेट लाइट लेके आए, जैसे कि ब्लैकबक हो गया, राइट, उस टाइप के मॉडल वाली कंपनीज भी है। तो आप कंपटीशन को इन जनरल कैसे देखते हैं, और सर बाकी कंपनी से आप अपने आप को कैसे अलग करते हैं? सर, ब्लैकबक हो गया और जो भी लिस्टेड कंपनीज हो गया जो आज के डेट में लिस्टेड है, वो कंपनियां, जैसा ब्लैकबक का ही आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्लैकबक इज नॉट ओनिंग देयर ओन फ्लीट्स। राइट। ब्लैकबक ये लीज बेस्ड ऑपरेशन में वो वर्क करते हैं। और उनका ज्यादा से ज्यादा कंटेनराइज, हम लोग जैसा, हम लोग अश्विनी कंटेनर मोर्स लिमिटेड एक कंटेनर एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है। हम लोग सिर्फ कंटेनर में ही डील करते हैं। हम लोग का वो स्पेशलिटी है, हम लोग सिर्फ 2PL कंटेनर मूवमेंट्स में डील करते हैं। और बाकी जो लिस्टेड कंपनी है उनका डोमेस्टिक्स वगैरह वो काम करते हैं। और एक्सपोर्ट कंटेनर मूवमेंट्स हैंडल करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, जैसे कि पोर्ट कट ऑफ मैच करना, वेसल शेड्यूल मैच करना। जो नहीं मैच करेंगे तो बहुत सारा अपने को पेनल्टीज वगैरह आता है शिपिंग लाइन का, डॉलर्स में, तो वो भरना पड़ता है। तो हम लोग का कोर स्पेशलिटी है एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स। ओके। सर, आप कंपनी में इंटरनली अगले 3 से 5 साल के लिए क्या विजन लेके, क्या गोल लेके चलते हैं? तो सर, कंपनी का हम लोग का एक ही विजन है। आज के डेट में हम लोग 340 गाड़ियों पे खड़े हैं, और आगे जाके हम लोग हर साल 100 से लेके 150 गाड़ियां कंपनी में बढ़ाएंगे। हम लोग जितने भी हम लोग के वर्टिकल्स है, जैसे CFS वर्टिकल हो गया, नावाशिवा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्टिकल हो गया, हजीरा वर्टिकल हो गया। अभी हम लोग नए बिजनेस के लिए भी आगे बातचीत चल रहा है हम लोग का, जैसे इनसाइड पोर्ट टर्मिनल बिजनेस हो गया। हम लोग ये बिजनेस में ही हम लोग का फ्लीट साइज उसमें बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हम लोग का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और हम लोग का जो भी नया गाड़ी हम लोग ले रहे हैं, साल में 100 150 गाड़ी है, वो उधर उनका यूजफुलनेस वो एरिया में हम लोग कर देंगे उनका। ऑलराइट। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल। सर, पोटेंशियल शेयर होल्डर, पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए यही मैसेज रहेगा। हम लोगों ने अश्विनी कंटेनर मोर्स में एक गाड़ी से चालू किया था। अभी आज के डेट में हम लोग 340 गाड़ियों में, हम लोग के जो भी प्रमोटर्स है, सब लोग हम लोग का हार्ड वर्क से आज के डेट में हम लोग 340 गाड़ियों पे पहुंचे हैं। और आगे 340 का 600 600 से 1000 होगा, और 1000 से 2000 भी होगा। हम लोग कंपनी में सब स्टार्ट टू लेके एंड तक सब लोग हार्ड वर्किंग है। हम लोग का विजन, हम लोग को आगे डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग एक जगह पे स्टिक नहीं है। हम लोग का आगे आगे बढ़ के भी जो एग्जिस्टिंग भी हम लोग का बिजनेस चल रहा है उनमें भी ग्रोथ, और हम लोग नए नए बिजनेस भी उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अलग अलग बिजनेस में भी हम लोग जाके हम लोग का रेवेन्यू हम लोग बढ़ाएंगे। तो वो हिसाब से आगे जाके कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा, फ्लीट साइज भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच साइनाथ सर, अमोल सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू।